शुरू करें बच्चों फिर? सर 5 मिनट और वेट कर लें, आ जाते हैं बाकी भी। चलें 5 मिनट और वेट कर लेते हैं। जी सर, शुरू कर लें आप। ओके जी, तो सबको आवाज आ रही है मेरी, बाकी सबको? यस सर। यस सर। ओके चलें फिर अब शुरू करते हैं। एक सेकंड, ये 26 कौन है आप में से? ओके, मेरी स्क्रीन भी शो हो रही है सबको? यस सर। Okay, so last time we were studying these Butterworth filters, okay, and we also learned what they do, what are their characteristics, their properties, and we also learned how to design them. Okay, so today I will introduce like couple of more filters. We will not be designing them, but at least you should be able to know like their traits, what are their advantages over Butterworth filter, and what are their cons in comparison to the Butterworth filter. Okay, so the second filter after Butterworth is a Chebyshev filter. Its approximative function lies between 1 and 1 minus epsilon inside the passband range of 0 till omega p. Okay, Chebyshev exhibits an equiripple characteristics with much reduced transition bandwidth. Okay, by equiripple characteristics, I mean that we saw in the case of Butterworth filter that it has a maximally flat response. Okay, so inside the passband range, its response was almost a straight line. In case of Chebyshev filter, you will not get that straight line. Instead of straight line, you get these ripples that you can see in the picture at the bottom. Okay, you can see that when omega is less than omega p, the amplitude oscillates between 1 and 1 minus epsilon. Okay, and this is what we call a ripple, equiripple, or oscillation. Okay, there are two types of Chebyshev filter: Chebyshev type 1 and Chebyshev type 2. Okay, in case of Chebyshev type 1, you have ripples in pass band, but it would be monotonic in stop band. So what does it mean? It means that you will see a equiripple response in passband domain. Your magnitude response will oscillate between 1 and 1 minus epsilon as long as your omega is less than omega p. However, once your omega crosses omega s, it will be a straight line, what we call a monotonic response. Okay. Furthermore, the number of ripples depend upon the order of the filter. So if you have a Chebyshev filter with order 4, then you will have 4 ripples between omega 0 and omega p. Okay, and one ripple means one maxima and one minima. Okay, so you will have one ripple corresponding to one peak and one valley. Okay, any question till now? You can always interrupt me in the middle. Any question till now? सर नो जी, सर। सर मोनोटोनिक की समझ नहीं आई। मोनोटोनिक का मतलब होता है स्ट्रेट लाइन, सिंपल, सीधा। सर समझ नहीं आई मतलब। जैसे मैडम देखें, आपके सामने ये फिगर शो हुई है, सामने जो सामने प्लॉट हुई है। यस सर। अच्छा, इसमें जब तक आपका एम्पलीट्यूड रिस्पांस ओमेगा पी से छोटा छोटा है, आप देख रही हैं कि जो एम्पलीट्यूड है वो वेरी कर रहा है 1 और 1 माइनस एप्सिलॉन के बीच में। ओके, यस सर।
अगर ये वेरी कर रहा है तो इसे कहते हैं रिपल्स ऑसिलेशन, ओके। अगर ये वेरी ना करे, स्ट्रेट लाइन हो, सिंपल किसी भी उसके ग्रेडियंट की, तो वो मोनोटोनिक रिस्पॉन्स होगा, ओके। ओके सर। उसमें कोई वेरिएशन नहीं आ रही, ठीक है। ओके सर। तो इस शेबिशेव फिल्टर का मतलब ये है कि ये ओमेगा पी से पीछे पीछे इसमें ऑसिलेशन होंगी, लेकिन जब एक दफा ओमेगा इसको क्रॉस कर गया, आप स्टॉप बैंड डोमेन में आ गए, तो आपको रिपल्स नहीं होंगे, वहां पे स्ट्रेट लाइन होगी। अब स्ट्रेट लाइन जीरो के बिल्कुल साथ साथ चल रही है स्ट्रेट लाइन। अब जो भी यहाँ पे फ्रीक्वेंसी कॉन्टेंट्स है वो डिस्कार्ड हो रहे हैं, अटेन्यूएट हो रहे हैं टू द मैक्सिमा, ओके। अच्छा, शेबिशेव फिल्टर में याद रखिएगा कि रिपल्स हमेशा पास बैंड डोमेन में होती हैं, शेबिशेव टाइप 1 में, ओके। अब शेबिशेव टाइप 2 फिल्टर जो है, जो अभी मैं आपके साथ जो स्क्रीन शेयर कर रहा हूँ, you can see over here that it has a monotonic response in a pass band. You can see that in pass band it almost has a maximally flat response, okay. However, as long as the omega crosses omega s, you can see that there are ripples after omega s, okay. So in Chebyshev type 2, you have a monotonic response in pass band and you have ripples in stop band. Yet again, the amplitude of ripples will always be less than sigma that you defined over here, and we have also introduced it before. Furthermore, the number of ripples will depend upon the order of your filter. So if you have more order, then you have more ripples. Advantage of Chebyshev filter over Butterworth filter is that the transition bandwidth, the difference between omega p and omega s, is a lot less in comparison to Butterworth filter. So if you have a filter design at your disposal in which you can compromise on a magnitude response, like you can accept certain oscillations or certain ripples in pass band or in stop band, okay, but you cannot compromise on the increase of transition bandwidth, then you should always choose Chebyshev filter over a Butterworth filter, okay. Any question till now? Yes sir. जी जी पूछें। सर मतलब पहले वाले जो टाइप 1 थी उसमें उन्होंने 1 से 1 माइनस ई के अंदर रिपल्स, ठीक है, और इसमें जो है वो यहाँ पे उसने 1 माइनस एप्सिलॉन तो मिटा मतलब खत्म ही कर दिया है, इसकी क्या रीजन? देखें, हमने जब शुरू में फिल्टर डिजाइन पढ़ना शुरू किया था, तो जब रियलिस्टिक फिल्टर को लिया था, तो हमने ये जो तीनों चारों वेरिएबल्स है तब डिस्क्राइब किए थे, ओके, कि आपका जो ओमेगा पी से पीछे वाला मैग्नीट्यूड रिस्पांस है उसे हम फ्रीडम देंगे कि वो 1 और 1 माइनस एप्सिलॉन के बीच में वेरी कर सके, ओके। और जब हम ओमेगा एस डोमेन में स्टॉप बैंड डोमेन में आएंगे, तो यहाँ पे हम एम्पलीट्यूड को फ्रीडम देंगे कि वो 0 और सिग्मा के बीच में ऑसिलेट कर सके, ओके। तो ये जो सिग्मा और एप्सिलॉन है ये हमारे पास हमेशा मौजूद रहेंगे, ओके। बेशक आपके पास टाइप 1 फिल्टर हो तो वो 1 और 1 माइनस एप्सिलॉन के बीच में ऑसिलेट करेगा। अगर शेबिशेव टाइप 2 फिल्टर है तो वो 0 और सिग्मा के बीच में ऑसिलेट करेगा, ओके। यस सर। दोनों के बीच में फर्क सिर्फ ये है कि शेबिशेव 1 के केस में आपके पास जो रिपल्स हैं वो पास बैंड डोमेन में होते हैं, और शेबिशेव टाइप 2 के केस में आपके पास जो रिपल होते हैं वो स्टॉप बैंड डोमेन में होते हैं, बस। और जितने रिपल ज्यादा होंगे वो डिपेंड कर रहे होते हैं कि आपका फिल्टर ऑर्डर क्या है, और एक रिपल एक पीक और एक वैल्यू को शो करता है। आगे चलूं फिर? सर एक दफा ट्रांजिशन का भी बता दें, आपने जो बताया है। मैडम ट्रांजिशन बैंडविड्थ वो है कि आप ओमेगा पी से ओमेगा एस आने में कितनी देर लग रही है। अभी यहाँ पे कितनी देर लग रही है, जो स्लाइड 2 में शो कर रहा हूँ आपको आपके सामने, ठीक है। यहाँ पे ओमेगा पी और ओमेगा एस के बीच में थोड़ा सा गैप है, ऐसा ही है? यस सर। अगर ओमेगा पी और ओमेगा एस के गैप को कम करते जाएंगे तो इसका मतलब है कि ये ट्रांजिशन कम हो गई है, आपका जो फिल्टर है वो बड़ी जल्दी से पास बैंड से स्टॉप बैंड में आ गया, ठीक है। तो सर्टेन एप्लीकेशंस के केस में हम ये डिजायरेबल होता है हमारे लिए कि ये जो डिफरेंस है ओमेगा पी और ओमेगा एस के बीच में ये कम से कम हो, ठीक है। मतलब ठीक है रिपल्स फ्रीक्वेंसी में आते हैं आ जाएं ओमेगा पी में या ओमेगा एस में, ओके, लेकिन इनके बीच में डिफरेंस है वो कम से कम हो, ठीक है। तो फिर उस केस में हम शेबिशेव फिल्टर को चूज करते हैं, बटरवर्थ फिल्टर को चूज नहीं करते, ओके जी सर। अच्छा, मूविंग ऑन, since you've seen that in Chebyshev type 1 you have ripples in passband domain, in Chebyshev type 2 you have ripples in stopband domain. What if you have ripples in both? You have ripples also in passband domain, and you have ripples in also in stopband domain, okay. Such a filter is known as elliptic filter, okay. It has ripples in both passband and both stopband. In passband the ripples will vary between 1 and 1 minus epsilon, and in stopband the ripples will vary between 0 and sigma, okay. Of course, elliptic filter probably will perform better in comparison to Chebyshev filter or Butterworth filter, okay, but it will have a more complex polynomial in comparison to Butterworth or Chebyshev filter, okay. So moving on to slide 3,
how does the transfer function of this Chebyshev filter and elliptical filter looks like? Okay, so for the type 1, the Chebyshev filter has a transfer function given by the equation on top of the slide, which is h of j omega magnitude square is equal to 1 over 1 plus epsilon square Tn square omega over omega c. Okay, in this case the Tn is nth degree Chebyshev polynomial, and on the right side inside the box I've just given you example how does a Chebyshev polynomial look like. Okay, so in this case cos theta is a Chebyshev polynomial, and you can see that the cos 2 theta is equal to 2 cos square theta minus 1, and this is on the next line. I'm showing that I've just represented cos 2 theta with a t subscript 2x, and this is equal to 2x square minus 1, where x is the argument of your Chebyshev polynomial. Okay, since we will not be designing any Chebyshev or elliptical filter, I only want you to be familiar with this expression, how this expression looks like. Furthermore, the epsilon that we have introduced in this slide is related to your sigma p, which is 1 over epsilon square is equal to 1 minus sigma p whole square. Okay, for the case of type 2 Chebyshev filter, in which case you will have ripples in stop band domain, your transfer function looks like h of j omega magnitude square is equal to 1 over 1 plus whole bracket epsilon square Tn square inside omega c over omega bracket raised to power minus 1. Okay, yet again, since now our ripples have moved from pass band domain to stop band domain, so the relation now between will be sigma, instead of sigma p it will be between sigma s, so it will be epsilon square over 1 plus epsilon square is equal to 1 minus sigma s whole square. These are just the expressions, we will not be working on them, you just need to keep them in mind. Okay, and afterwards for the elliptic filter, in case of elliptic filter, we do not have a Chebyshev polynomial, we have a Jacobian elliptical function. Okay, I couldn't find an example of Jacobian elliptic function. Probably by next time I will find some function, I will show you how it looks like. Okay, in case of elliptic filter, your transfer function looks like h of j omega magnitude square is equal to 1 over 1 plus epsilon square En square, or inside the bracket you have your omega. Actually this omega is the same as what you have described before, W, so please replace this Ohm sign with the W sign. Okay, you always use Ohm sign when you have digitized frequency, and you always have use W omega when you have a continuous frequency. Okay, so in this case, since on the left side you have W, on the right side you should have W as well. So, okay, so please write on your lecture notes that on slide 4 you need to replace this omega, which is in front of En square, this Ohm sign, with the W sign, and also on the lower line En inside the argument this Ohm sign with the W sign. Okay, any question till now? सर वो बच्चों को ना अटेंडी बना दे, सारों को बाहर जा रहे हैं, वो बाहर निकाल रहे हैं बच्चे। ये बच्चे क्यों करते हैं इतनी शरारतें फिर? हाँ सर, मैंने अच्छा, काफियों को किया। जी मुझे बेसिकली 4 लोग हैं इस वक्त जो अटेंडी नहीं है, एक 17 है, एक 52 है, एक हिरा है और एक मुनीब है, तो यही लोग शरारतें कर रहे हैं। सर मैंने ना 10-12 लोगों को अटेंडी बनाया, तो वो अच्छा, बाकियों अच्छा, को नहीं आप- बना सर सकता यही मैं। था, यही है, ये जो 4 हैं इनमें से कोई कर रहा बार-बार हमें। सर मैंने नहीं निकाला सर, मैंने तो अटेंडी बनाया सर। मैं लिख लेता हूँ अपने पास, ये है 17, 52, हीरा सर अशरफ कौन है? मैंने अटेंडी बनाया सर, मैंने निकाला नहीं है सर। नहीं, बहुत अच्छी बात है, बना देना चाहिए। एक सेकंड, मैं भी बना दूँ। सर मैंने तो किसी को कुछ भी नहीं किया। और कुछ बेटा हर भी नहीं बंदा किया यही सर कर, मैंने। सर मैं तो आपको बता रहा हूँ, मैं निकालना क्यों, पागल हूँ। बिल्कुल सही कह रहे हैं आप। इसका मतलब है कि बंदा लेक्चर ना दे, बस यहाँ बैठ के लोगों को अटेंडी बनाता रहे, क्योंकि जहाँ किसी को मौका मिला उसने फौरन शरारतें शुरू कर देनी है ना। सर ये मुझे तो नहीं पता है, मैंने तो बच्चों के लिए किया ताकि बच्चों को बाहर ना निकाले, मैंने अटेंडी बना दिया। मैं तो चलें, आज बहुत तक अच्छा, किसी को नहीं निकाला। ठीक है, चलें। अब इस वक्त तो कोई किसी को नहीं म्यूट शूट कर सकता है इस वक्त, जस्ट टू कंफर्म, ऐसा ही है? यस सर। ओके, चलें। अच्छा, वापस आते हैं स्लाइड पे। मेरी स्लाइड शो हो रही है सबको? यस सर। Okay, ठीक है। So we have just gotten ourselves familiar with the expressions of Chebyshev filter and elliptic filter. We will not be designing those filters. Okay. So the next step is we actually last time we designed a low pass Butterworth filter,
for a certain order and also for certain omega c, right? Every one of us did that, okay? Yes, sir. Okay. But if our requirement is that the user does not want a low pass filter, he want a corresponding high pass filter, okay? So how do we do then? Okay, so assuming we have designed a low pass filter with certain omega c, and we want to convert this to a high pass filter while keeping all characteristics intact, okay? So you should keep in mind that we, in case of filter design, we do not design a high pass filter directly, okay? What we do is we design a low pass filter with a same cutoff frequency as omega c, and with the same filter order with the same epsilon and omega, and then we transfer our low pass filter to high pass filter, okay? And this translation I'm showing you with this figure on the bottom, where you can see is there's a low pass filter with certain omega c, and if we translate this low pass filter into high pass filter, it get translated to the high pass filter, where your omega c now works as your omega s. So whenever the frequency crosses this omega c, it stops getting truncated and it gets transmitted to the full, okay? So always keep in mind, whenever you're designing a filter, you first design a low pass filter and then you translate your low pass filter to the high pass filter, okay? And how does this translation works is I'm showing you over here. So all you need to do is you replace your s with omega c over s in your transfer function, okay? So you design your low pass filter with the same omega c, with the same epsilon or filter order, and then you replace wherever you have s in your h of s expression with omega c over s, okay? And we do one example for this. Design a Butterworth Excuse me, filter. sir. जी सर हम डायरेक्टली क्यों नहीं हाई पास बना सकते? लो पास से होगी, हम क्यों हाई पास बनाते हैं? पता है, ये इजी है हमारे लिए। मतलब और भी तरीके हैं, लेकिन वो कॉम्प्लिकेटेड, इसलिए मैं उनमें नहीं गया। जो सिंपलेस्ट है वो यही है कि आप अपना हाई पास फिल्टर भी लो पास से बनाते हैं और अपना बैंड पास फिल्टर भी लो पास से बनाते हैं, ओके? और लो पास आपने ऑलरेडी बनाना सीख लिया हुआ, ओके? सो एक एग्जांपल है मेरे पास, डिजाइन है बटरवर्थ हाई पास फिल्टर फॉर ऑर्डर इज इक्वल टू 3 एंड ओमेगा सी इज इक्वल टू 1, ओके? सो लास्ट टाइम हमने देखा था कि इसके लिए सबसे पहले हम क्या करेंगे कि हम एक लो पास फिल्टर बनाएंगे फॉर ऑर्डर 3, जो कि हमने लास्ट टाइम बनाया भी था, ओके? तो मैंने उसी का ट्रांसफर फंक्शन यहाँ लिख दिया है, h of s is equal to 1 over s plus 1 into s square plus s plus s plus s plus 1, okay? So omega c इस केस में 1 है, तो ओमेगा की जगह 1 आ गया। इसका मतलब है कि मैंने सिर्फ अपने s को 1 over s से रिप्लेस कर देना है, ओके? सो मैंने वही किया अपनी जो सबसे बॉटम वाली एक्सप्रेशन है उसमें। मैंने 1 over s plus 1 into s square plus s plus 1 में जहाँ जहाँ s है 1 over s पुट कर दिया है। डिनोमिनेटर में मैंने एलसीएम लिया, उसको फर्दर सॉल्व किया है, तो मेरे पास h of s की जो एक्सप्रेशन बनी है वो s cube over s plus 1 और into s square plus s plus 1 बन गया, ठीक है? तो ये बेसिकली मेरे पास एक हाई पास फिल्टर बन गया विद ओमेगा c is equal to 1 and with order is equal to 3, okay? So before we move forward, I want each and every one of you to do this homework जल्दी से, कि for omega c is equal to 1 design a high pass filter for order is equal to 4 जल्दी से। और मुझे जो बंदा सबसे पहले इसका सॉल्यूशन सही बताएगा, मैं उसको 1 मार्क एग्जाम में दूंगा एक्स्ट्रा। हेलो, गाइस सबको आवाज आ रही है मेरी? Sir, 1 over s plus 1. मैडम फिर से बोलें, 1 over 1 over s plus 1. 1 over 1 plus s plus 1 No, आगे no. जी। Denominator में 1 over s plus 1. तो इसको सॉल्व करें मजीद, मतलब इसका एलसीएम ले लें और नीचे एस लेके फिर एस को ऊपर ले जाएं। आपके पास कुछ ना कुछ एस न्यूमरेटर में होगा इस केस में, ओके? तो मुझे फाइनल सॉल्यूशन बताएं। s over 1 plus s.
जी किसी ने किया डिजाइन अभी तक के नहीं? S over 1 plus S. S ओवर 1 प्लस 1 plus S. S, बस ये सोल्यूशन है? सर जब ऑर्डर 1 था तो उसके लिए यही आता है ना। अरे मैंने ऑर्डर 4 नहीं बोला। गाइस मैंने ऑर्डर 4 बोला है या ऑर्डर 1 बोला है? सर 4 बोला आपने। ओके फिर ठीक है। So 1 over s plus 1 into s minus 1 into s square plus s plus 1. एक सेकंड। जी अब बताएं क्या सोचना आया आपके पास? So 1 over s plus 1 into s minus 1 आपके पास into न्यूमरेटर में कुछ ना कुछ s आएगा। ऐसा कैसे हो सकता है कि हाई पास फिल्टर के केस में न्यूमरेटर में s ना आए? सर बता रहा हूँ ना जी बताएं। सर into s square plus s plus 1 और ऊपर जो है s का क्यूब s का 4 आएगी पावर। हाँ ऊपर s की 4 है। ओके तो नीचे जो है ये ऊपर तो s4 क्लियर हो गया, यही रहेगा। नीचे s4 के साथ जो नीचे भी s4 वाली टर्म है कोई? नहीं सर नीचे नहीं है। नीचे s क्यूब वाली टर्म है कोई? नहीं सर s क्यूब वाली भी नहीं, सिंपल s वाली मल्टीप्लाई हो रहा है। तो उन्हें s मल्टीप्लाई स्क्वायर वाली करना है ये s सर स्क्वायर वाली क्या है? s स्क्वायर वाली है s स्क्वायर प्लस s प्लस 1। स्क्वायर s बस सिर्फ डिनोमिनेटर में s स्क्वायर प्लस s प्लस 1 है। सर 3 है ना, एक s प्लस 1 है एक s माइनस 1 है इनटू फिर ये जो मतलब मल्टीप्लाई हो तो रहे हैं बेटा दोनों और ये फिर मैं इसके वही साथ तो प्रोडक्ट। बता रहा हूँ, इन्हें आपस में मल्टीप्लाई करें। जी सर। फिर मुझे डिनोमिनेटर में ऑर्डर बताएं कि s4 के साथ का लगा हुआ है, s क्यूब के साथ क्या है, s स्क्वायर के साथ क्या है, s के साथ क्या है और s के बगैर क्या है। ओके सर आपने तो वैसे सिंपल सॉल्यूशन पूछा था, वो तो अब आगे सिंपलीफाई करेंगे फिर आएगा ना, वैसे मैंने आपको बताया। सिंप्लीफाई करेंगे तो मैं किसी ऐसे जगह पूछूंगा जहां हम जवाब आपस में मैच कर सकें। नहीं ठीक। और कोई बच्चा? चौंतीस अटेंडेंस है और कोई बंदा अब क्लास में नहीं जाग रहा है इस वक्त? सर जाग रहे हैं। हाँ मैडम सॉल्व भी कर रही हैं आप एग्जाम्पल को? सर बस सर 1 मिनट होने लगा है बस। चलें होने दीजिए, 2 मिनट ले लें आप। सर मैंने नहीं लास्ट लेक्चर लिया था, मेरे घर का ट्रांसफार्मर खराब था इसलिए नहीं जी पता जी मुझे। मुझे पता है। जी मैं एग्री करता हूँ, आपकी जस्टिफिकेशन बिल्कुल ठीक है। ट्रांसफार्मर ठीक हो गया आपके मोहल्ले का? जी सर।
आई होप कि आज की डेट में कोई सोल्यूशन आ जाएगा कहीं से, नहीं? सर जी जी, सर न्यूमरेटर में s raised to power 6। एस रेज टू पावर 6। यस अच्छा, पक्की बात है, बाकी सबका भी यही है? सर s को 1/s से रिप्लेस करके ही करना है ना? जी जी, एस को 1/s से रिप्लेस करके ही करना है, लेकिन डिग्री नहीं बढ़नी चाहिए। शायद मैंने गलत कैलकुलेशन की है। चलें अपने और किसी क्लास वालों से जरा कंफर्म हो जाए। न्यूमरेटर किस किस का क्या वैल्यू है? न्यूमरेटर की वैल्यू तो सबके पास आ जानी चाहिए अब तक। सर 1/s plus 0.382 minus j omega, sorry j 0.923। मैडम आप s की पावर 4 न्यूमरेटर बनेगी। बता रही हैं, न्यूमरेटर बता रही हैं, डिनोमिनेटर बता रही हैं? सर डिनोमिनेटर बता रही हूँ। मेरे ख्याल से न्यूमरेटर में सिर्फ एक ही टर्म आनी चाहिए, एस की कोई भी ऐसा आएगा पावर। सर। सिर्फ एस आएगा? नो सर, s की पावर 4 आएगी क्योंकि S 4 हमारे पास बने ओमेगा। मैडम डिसाइड कर लें एक दफा। सर s की पावर 4। चलें एस की पावर 4, न्यूमरेटर तो डिसाइड हो गया, अब डिनोमिनेटर बताएं। सर मल्टीप्लाई किए बगैर बता रही हूँ। मैडम हाँ, मल्टीप्लाई one- करेंगे तो मैच होगा, वरना कोई आंसर मैच नहीं होगा। सर फिर वो 4 टर्म्स है, काफी टाइम लगेगा मल्टीप्लाई करने में। कर दें, कोई नहीं कह रहा है। कर दें, कोई नहीं, टाइम ले लें आप, आज हम ये करके जाएंगे ओके सॉल्व। सर। आप लोग इंटेलिजेंट काबिल इंजीनियर हैं, मुझे लगता है आप तो जल्दी जल्दी मल्टीप्लाई कर लेंगे। जी एक ही मैडम मल्टीप्लाई करेंगे आप में से, बाकी सब नहीं करेंगे? सर जी जी हेलो जी, सर न्यूमरेटर बताएं। में s raised to power 4 और ठीक है, सर और डिनोमिनेटर में सर s plus 1 into s square plus s plus 1 मल्टीप्लाई into करें एक दूसरे के साथ, इस तरह हम मैच नहीं कर सकते। आप जब मल्टीप्लाई करेंगे तो आपके पास एक टर्म बनेगी जिसकी पावर एस क्यूब होगी, एक टर्म बनेगी जिसकी पावर एस स्क्वायर होगी, फिर उनका मुझे बता दें एस क्या लगा है ताकि हम मैच कर सकें। ओके सर फिर आता है ओके x4 x की पावर 4 प्लस 2x3 ठीक है, और जी जी मैडम बोलती जाएं आगे भी। x की पावर 4 डिवाइडेड बाय x की पावर 4 प्लस 2x की पावर 3 प्लस 2x की पावर 2 प्लस 1। सर पूरा हो गया। मैडम इसमें थोड़ी सी गलती है, आपके पास सिंपल एस वाली कोई टर्म नहीं है डिनोमिनेटर में, एस रेज टू पावर 1 वाली। सर 2s plus 1 चलो जी, मैं अपना सोल्यूशन आपको सर बताया ऊपर x की पावर 4 है, नीचे x की पावर 4 प्लस 2x की पावर 3 प्लस 2x की पावर 2 प्लस 1। हाँ नहीं, इसमें थोड़ी सी गलती है क्योंकि मेरे पास डिनोमिनेटर में है S4 सर प्लस 2s square plus 2s और plus 1। सबके पास यही आ रहा है क्योंकि मेरे पास डिनोमिनेटर में आ रहा है S4 प्लस 2.6 S क्यूब प्लस 3.41 S स्क्वायर प्लस 2.61 S प्लस 1। S क्यूब 2.41 S स्क्वायर प्लस 2.61 S प्लस 1। ओके, बहरहाल मैं अपना सोल्यूशन एक दफा बोल देता हूँ आप लोगों के सामने, ठीक है? आप फिर उसे मैच कर लीजिएगा अपने साथ। ओके, मेरे पास सोल्यूशन जो बन रहा है S4 न्यूमरेटर में है, डिनोमिनेटर में जो पूरी टर्म है वो ये है S4 प्लस 2.61 S क्यूब प्लस 3.41 S स्क्वायर प्लस 2.61 S प्लस 1। ठीक है, एक दफा दोबारा रिपीट कर दे। जी न्यूमरेटर में S4 है,
डिनोमिनेटर में S4 प्लस 2.6 S क्यूब प्लस 3.4 S स्क्वायर प्लस 2.6 S प्लस 1 ऑर्डर 4 के लिए। ठीक है मैडम? यस सर। ओके सर चलें हमारी अब थोड़ा पॉइंट तो इससे नहीं आ रही, 2 आ आवाज कट रही है रही थी, समझ नहीं आया। जब 2x पास नहीं आ रही है। आप लोगों ने मुझे बताया लो पास फिल्टर की एक्सप्रेशन क्या बनाई है, पहले हम वो तो निकालें ना, हाई पास तो हम बाद में जाएंगे। मेरे पास जो लो पास की एक्सप्रेशन है ना वो ये है, मैं आपको बता देता हूँ। 1/S4 प्लस 2.6 S क्यूब प्लस 3.4 S स्क्वायर प्लस 2.6 S प्लस 1। सबके पास लो पास एक्सप्रेशन यही बनी थी? सर हमने लो पास क्यों निकालनी थी, अपना काम ही बढ़ जाता हमारा, क्योंकि हमने तो ऑलरेडी हमारे पास डिवीजन में आ रहा था, हमने उसको मल्टीप्लाई करके ऊपर ले गया। ऐसे कर लें, फिर आंसर सही आना चाहिए मैडम। मैं पहले जो, क्योंकि मेरे पास ना सर आपके पास की टर्म आ रही है सर, जे में आ रही है डिनोमिनेटर में। आ रही होगी, लेकिन मैंने बेसिकली ना मैं आपको बताता हूँ, मेरे पास ना ये बटरवर्थ फिल्टर के जितने भी 1 से लेकर 6 ऑर्डर तक की एक्सप्रेशन है ना, वो सब की ये सब ऑलरेडी बुक में दी हुई है, ठीक है। और उसके अलावा और कुछ बन नहीं सकती, ठीक है। तो ऑर्डर 4 के लिए जो एक्सप्रेशन है ना वो ये बनती है, मैं एक साथ बोल देता हूँ, ठीक है। 1/S4 प्लस 2.6 S क्यूब प्लस 3.4 S स्क्वायर प्लस 2.6 S प्लस 1, ठीक है। मैंने सिर्फ इस एक्सप्रेशन को S की जगह इसमें 1/S डाल के एलसीएम ले लिया इसका, ओके। अब इस एक्सप्रेशन में ऑलरेडी जो जे जो है ना वो एक दूसरे से मल्टीप्लाई होकर खत्म हो चुके हैं, ठीक है। तो आपके पास अगर एक्सप्रेशन में कुछ जे आ रहा है ना, तो इसका मतलब आपने कहीं ना कहीं को गलती की है, क्योंकि जे नहीं आना चाहिए कहीं पे भी। सर वो तो ठीक है, जे मल्टीप्लाई के कैंसिल हो जाते हैं, लेकिन इसमें जो कि हमारे पास जो एस है ना वो डिनोमिनेटर में हमारे पास, जब एस हम लोग क्योंकि एक एक इंडिविजुअल, क्योंकि 4 हमारे पास ओमेगा की वैल्यू आएंगी, तो एक इंडिविजुअल भी हम करें ना तो एस का अगर हम एलसीएम ले तो सबके पास ना एस आ जाता है साथ में। अब सिंपल मैं एक वही एस वाली टर्म है, और मैं सर वही सर जो आपको बता रहा मल्टीप्लाई होगी ना एक एस सिंपल जे के साथ भी आएगा। हूं। अब नहीं, जैसे एस स्क्वायर है ना, इस तरीके से एस जे भी है हमारे पास। एस स्क्वायर है जी सर। तो फिर जो आपके सर पास एस क्यूब जे वाला जे है प्लस वो, एस जे होगा। अच्छा, क्योंकि मैंने ना वो जो आपने पोल्स रखे जहां से वैल्यूज ली हैं मैंने वो नहीं ली थी, मेरे पास ऑलरेडी ये एक बुक में एक्सप्रेशन है ना, मैं उसी को लेके आगे चला हूं। और ये जो एक्सप्रेशन है ये स्टैंडर्ड है, ठीक है। एक सेकंड, मैं एक काम करता हूँ, मैं ये वाली एक्सप्रेशन जो है ना ये आपके साथ शेयर कर देता हूँ ताकि आपको आइडिया हो जाए मैं आपसे क्या बात कर रहा हूँ। जस्ट अ सेकंड, मुझे 1 मिनट दें बस आप। कैम स्कैन, फिर सर हो सकते हैं उन्होंने जे की वैल्यू ना अंडर रूट -1 पुट करके सॉल्व कर लिया हो, हो सकता है। अदरवाइज ये आता है। हाँ अगर आपके पास जे नहीं आता तो उन्होंने फिर जरूर पुट की होगी वैल्यू उसकी। मैं इसे जस्ट शेयर कर लूँ आपके साथ, जस्ट अ सेकंड। जेपैग, ब्लूटूथ, जी मेरी स्लाइड शो हो रही है सबको अब? जी सर। ओके, तो ये ट्रांसफर फंक्शन यस सबको शो सर। हो रहे हैं? यस यस सर। सर। ओके, ठीक है। ये बेसिकली मैंने बुक से ही एक्सकर्प लिया है, ठीक है। ऑर्डर 4 के लिए उसने एच ऑफ एस दिया हुआ आपको, उसने क्यू ऑफ एस लिख दिए यहाँ पे, ठीक है। आपने जब एच ऑफ एस बनाना है तो आपने 1/क्यू एस लेना है, ठीक है। तो बिल्कुल आपके पास जो बटरवर्थ लो पास फिल्टर की एक्सप्रेशन बनती है इस स्लाइड से, वो ये बनती है 1/S4 प्लस 2.6 S क्यूब प्लस 3.4 S स्क्वायर प्लस 2.6 S प्लस 1, ओके। और इसी में उसके बाद आपने एस की जगह 1/S पुट कर देना है, मैंने यही किया था, ठीक है। तो आप वेरीफाई कर सकते हैं यहाँ से कि आपका आंसर इससे मैच कर रहा है कि नहीं कर रहा, क्योंकि ये ठीक आंसर है। ठीक है गाइस,
ओके सर। यस सर। चलें अब आगे चलते हैं हम। अच्छा, अब आगे एक और एग्जांपल है, ठीक है। वो कह रहा है कन्वर्ट h of s is equal to 1 over s square plus under root 2s plus 1 which is a second order Butterworth low pass filter with omega c is equal to 1 to high pass filter। अब ये प्लीज जल्दी से करें ताकि मुझे ये सॉल्यूशन आप बता सकें। आपको h of s दिया हुआ है इस केस में। तो इसमें सिर्फ 1 और s पुट करेंगे बस आंसर आ जाएगा। जी, मुझे तो यही लगता है। जी कोई सॉल्यूशन आया अभी तक के नहीं? s square divided by 1 plus सर under s root 2 स्क्वायर s plus बाय जी जी, s स्क्वायर डिवाइडेड बाय s स्क्वायर 1 प्लस अंडर plus रूट 2s प्लस 1। हाँ बिल्कुल ठीक है, ओके। अच्छा तो अब देखें, आप अगर इस क्वेश्चन पे गौर करें तो 1 ओवर s लेने से डिनोमिनेटर में जितनी चीजें हैं ना उनमें s की पावर जो है ना वो रिप्लेस हो गई है, ठीक है। जैसे जो s क्यूब है इसको s स्क्वायर से डिवाइड हो गया, अंडर रूट 2s भी s स्क्वायर से डिवाइड हो गया और 1 ओवर s भी जो है वो s स्क्वायर से डिवाइड होकर पावर ऊपर आ गई है, ठीक है। तो बिल्कुल इसी सॉल्यूशन को देखते हुए अगर आप ये पिछली वाली एक्सप्रेशन पे जाए ना जो आपने s4 लिया था, ठीक है, तो अगर इसका भी आपने हाई पास बनाना है तो वो इसी तरह की चीज बनेगी 1 प्लस 2.6 s क्यूब प्लस 3.4 s स्क्वायर प्लस 2.6 s प्लस s4, ओके। तो मेरा ख्याल है जो पिछला सॉल्यूशन मैंने बताया था वो ठीक था क्योंकि अब आपने इस सॉल्यूशन से वेरीफाई कर दिया, ओके। मैं सॉल्यूशन फिर सबके लिए रिपीट कर दे रहा हूँ। ये जो प्रॉब्लम अभी सामने हमने फिलहाल स्लाइड खोली हुई है इसका सॉल्यूशन है s स्क्वायर डिवाइडेड बाय 1 प्लस अंडर रूट 2s प्लस s स्क्वायर, राइट? यस सर। ठीक है, ये हाई Yes, पास sir. फिल्टर बना लिया, ठीक है, और इसकी ओमेगा सी 1 है, ठीक है। पिछले केस में वो आपने पहले आप लो पास फिल्टर बनाते हैं वो द सेम ओमेगा सी और फिर आप उस लो पास फिल्टर को हाई पास फिल्टर में कन्वर्ट कर देते हैं, ओके। अभी तक किसी के पास कोई क्वेश्चन नहीं है तो फिर हम आगे चलते हैं, ओके। जी सर। सर इसका आंसर दोबारा बता दें एक दफा। मैडम इसका आंसर है s स्क्वायर डिवाइडेड बाय 1 प्लस अंडर रूट 2s प्लस s स्क्वायर। ठीक है यही आया आपके पास? सर, मैं अभी कर रही हूँ, मैंने ये नहीं लिया तो मैं किसी से एक दफा प्रीवियस लेक्चर समझ के फिर कर लूंगी, जो नहीं आएगा फिर पूछ लूंगी आपसे। अच्छा, अब एक तो चीज थी कि हमने ओरिजिनली वी लर्न हाउ टू डिजाइन अ लो पास बटरवर्थ फिल्टर, ओके, एंड देन वी saw that how can we convert those low pass filter to high pass filter, okay. What if we need to convert a low pass filter to band pass filter, okay? This is also the same case. First you design your low pass filter and then you do certain transformation which converts your filter to from low pass to band pass, okay. So first of all, what are the band pass filtering, okay? The band pass filtering has two traits. First of all, it needs to have h of j omega magnitude mod equal to 0 at both omega is equal to 0 and omega is equal to infinity, okay. This means that it will truncate the frequency contents which are very low and it will also truncate the frequency contents which are very high and only allow a certain frequency contents which lie somewhere in the middle of 0 and infinity to pass through it, okay. And furthermore, h of j omega mod should almost equal to 1 for a frequency band centered on omega naught at mid band frequency, okay. So you need to have two things. First of all, one is the bandwidth, is how much width of the frequency contents you want to pass, okay. So if the width is big enough, then your bandwidth is big. If the width is small enough, then your bandwidth is small, okay. With reference to the figure which you're showing which you're seeing in the middle of your slide right now, okay. Furthermore, exactly in the middle of the bandwidth you have your mid band frequency denoted as omega naught, okay. So in order to bandwidth का समझ नहीं आया सर, ये बैंडविड्थ का सिर्फ बेटा ये जो फ्रीक्वेंसी कंटेंट्स है ना इनकी विड्थ है, कि आपने कितनी विड्थ, आपकी बैंडविड्थ ज्यादा है या बैंडविड्थ कम है, वो से मैंने 20 से शो किया हुआ है, ओके। अगर आप सिर्फ और सिर्फ एक ही फ्रीक्वेंसी को पास करना चाहते हैं ओमेगा नॉट को, तो फिर आपकी जो बैंडविड्थ है वो ऑलमोस्ट 0 है या शायद 1 है, ओके।
लेकिन अगर आप चाहते हैं कि आपके ओमेगा नॉट के आगे भी कुछ फ्रीक्वेंसीज ट्रांसमिट हो, ओमेगा नॉट के पीछे भी कुछ फ्रीक्वेंसी ट्रांसमिट हो, तो फिर आपकी बैंडविड्थ ज्यादा होगी। बैंडविड्थ सिर्फ वो बैंड ऑफ फ्रीक्वेंसीज है। ओके सर अभी हम ऊपर कह रहे हैं कि वो बैंड पास फिल्टर जो है बहुत लो जो है वो फ्रीक्वेंसी उनको ही पास करने देगा, और ज्यादा भी होंगे उनको ही पास करने देगा। आप उल्टा बोल रहे हैं, वो ना लो फ्रीक्वेंसीज को पास करने देगा ना हाई फ्रीक्वेंसीज को पास करने देगा। मतलब ओमेगा इज इक्वल टू 0 का मतलब है कि 0 ओमेगा, ओमेगा इज इक्वल टू इंफिनिटी का मतलब है कि वेरी हाई ओमेगा। ओके, इसका मतलब है कि बीच में कुछ सेट ऑफ फ्रीक्वेंसीज ऐसी होंगी जिनको वो पास करने देगा। वो सेट ऑफ फ्रीक्वेंसीज कितनी ज्यादा होंगी वो आपकी बैंडविड्थ करती है डिसाइड। ओके, जैसे अज्यूम कर लेते हैं, मैं ओमेगा नॉट ले लेता हूं, अपने पास पीस ऑफ पेपर पे लिखें आप, ओमेगा नॉट इज इक्वल टू 20 रेडियंस। ओके, अब मैं इससे पीछे भी 5 रेडियंस ले लेता हूं और इससे आगे भी 5 रेडियंस ले लेता हूं, तो इसका मतलब है कि मैं 15 से लेके 25 रेडियंस तक जो मेरी 10 रेडियन की बैंडविड्थ है उसको पास कर रहा हूं, और 20 रेडियन जो है मेरी वो सेंटर ओमेगा नॉट है। ओके, तो इस केस में बैंडविड्थ जो है मेरी वो 10 रेडियंस हो गई और ओमेगा नॉट मेरी 20 रेडियंस हो गई। ओके, तो मतलब 5 पहले 5 बाद वाले भी ऐड कर रहे हैं। हाँ, 5 पहले 5 बाद वाले, जस्ट इन केस में मेरी बैंडविड्थ 10 है, वह अगर मेरी बैंडविड्थ 20 होगी तो फिर मैं कितने ऐड करूंगा? तो फिर आप 10 ऐड करेंगे आगे पीछे। एग्जैक्टली, फिर मैं 10 पीछे 10 आगे, तो इसका मतलब है कि मेरी ओमेगा नॉट वहीं की वहीं मौजूद है। मेरी बैंडविड्थ सिर्फ ये डिसाइड कर रही है कि उस ओमेगा नॉट से आगे कितनी फ्रीक्वेंसी इंफॉर्मेशन पास होगी और उस ओमेगा नॉट से पीछे कितनी फ्रीक्वेंसी इंफॉर्मेशन पास होगी। ओके, ठीक है। तो जब भी आप बैंड पास फिल्टर डिजाइन कर रहे हैं, आपको हमेशा ये दो चीजें मालूम होनी चाहिए, एक आपकी ओमेगा नॉट और दूसरी आपकी बैंडविड्थ है। ठीक है, और दोनों के यूनिट सेम होंगे, दोनों के यूनिट रेडियंस ही होंगे। ठीक है, अच्छा, येट अगेन जो हमने पहले देखा था, इन ऑर्डर टू डिजाइन, जी जी सर यहाँ पे जो मिड बैंड फ्रीक्वेंसी है वो ओमेगा नॉट है, वो ओमेगा नॉट है बिल्कुल, और वो एग्जैक्टली इन द मिडल होगी। ठीक है, ठीक है, थैंक यू। ओके, for designing a band pass filter we design a low pass filter and then do the following ट्रांसफॉर्मेशन। जिस तरह हमने हाई पास फिल्टर के केस में एक ट्रांसफॉर्मेशन की थी, हम बैंड पास फिल्टरिंग के केस में भी एक ट्रांसफॉर्मेशन करते हैं। हम अपने s को रिप्लेस कर देते हैं s स्क्वायर प्लस ओमेगा नॉट स्क्वायर डिवाइडेड बाय b इनटू s। ओके, इसमें हमें ओमेगा नॉट मालूम है और हमें b मालूम है। ठीक है, ये दोनों हमें रेडियंस में फ्रीक्वेंसीज दी हुई हैं, तो हम अपने लो पास फिल्टर को ट्रांसफॉर्म कर लेते हैं बैंड पास फिल्टर में। ओके, इससे लेके कोई क्वेश्चन तो नहीं अभी तक? तो ये BS क्या है? मैडम बी जो है आपके पास बैंडविड्थ है जो कि रेडियंस में आपको दी होगी, और एस वाला वेरिएबल है जो हमारे इस ट्रांसफर फंक्शन का वेरिएबल है, लैप्लास डोमेन का। ठीक है, तो इस केस में हमारे पास न्यूमरेटर में भी एस की टर्म्स होगी और डिनोमिनेटर में भी एस की टर्म होगी। सर एक सवाल था। जी जी करें करें। सर मतलब कोई भी हम फिल्टर डिजाइन कर रहे हैं उससे स्टार्टिंग में बेस हम लो पास फिल्टर ही रखेंगे, उसी से हमने हाथ में जाना। उसी से बटरवर्थ के केस में हम हमेशा यही करते हैं कि हम पहले एक लो पास बटरवर्थ फिल्टर कर लेते हैं डिजाइन। ठीक है, अपने पोल्स को उन मुनासिब जगहों पर रख के जहां हमें रखना होता है, और उसके बाद उस लो पास फिल्टरिंग से हम हाई पास ट्रांसफॉर्मेशन कर देते हैं या बैंड पास ट्रांसफॉर्मेशन कर देते हैं। और इवन अगर हमने डिजिटल फिल्टर बनाना है तो भी हम यूजुअली ये करते हैं कि हम पहले एनालॉग फिल्टर बनाते हैं एस डोमेन में, जो अभी तक हम कर रहे हैं एच ऑफ एस, और फिर हम बाइलिनियर ट्रांसफॉर्मेशन करके इस एस को जी में ट्रांसफॉर्म कर देते हैं। ओके, तो हमारा स्टार्टिंग पॉइंट हमेशा लो पास फिल्टर ही होता है। इसलिए मैंने जो आपको सबसे पहला इससे पहला दिया था जो लेक्चर, जहां मैंने आइडियल लो पास फिल्टर से एक रेक्टेंगुलर पल्स गुजारी थी, वो इसलिए दिया था कि लो पास फिल्टरिंग हमारी बेसिक है, हम वहां से आगे स्टेप मूव करते हैं अपने नॉलेज को मजीद बढ़ाने के लिए। ठीक है, और आपके लिए भी यही होना चाहिए। आपने कोई भी फिल्टर डिजाइन करना है, अभी तक हमने जितना पढ़ा है, आपने हाई पास फिल्टर डिजाइन करना है, आपने बैंड पास फिल्टर डिजाइन करना है, आप सबसे पहले लो पास फिल्टर डिजाइन करते हैं और फिर उसमें एस की जगह फर्दर मतलब जो भी अप्रोप्रिएट ट्रांसफॉर्मेशन करके हाई पास या बैंड पास पे चले जाते हैं। ठीक है, ओके, चलें, अब हमने ये फार्मूला पढ़ लिया बैंड पास ट्रांसफॉर्मेशन का। हम एस को किस चीज से रिप्लेस करेंगे? एस को रिप्लेस करेंगे एस स्क्वायर प्लस ओमेगा नॉट स्क्वायर डिवाइडेड बाय बी इनटू एस। ठीक है, इसमें बी वो बैंडविड्थ है जो हमें रेडियंस में दी होगी, ओमेगा नॉट वो मिड बैंड फ्रीक्वेंसी है जो रेडियंस में दी होगी, एस और जो है हमारा वो लैप्लास डोमेन का हमारा वेरिएबल है। अब आगे हमारे पास एक एग्जांपल है जो आज की लास्ट एग्जांपल है। ठीक है, हमारे पास एक लो पास फिल्टर है फर्स्ट ऑर्डर का, और उसका ट्रांसफर फंक्शन अगर आप वो पीछे टेबल से देख भी लें तो वो यही होता है, एच ऑफ एस इज इक्वल टू 1/s+1। ठीक है, इस केस में मुझे जो मिड बैंड फ्रीक्वेंसी है वो ओमेगा नॉट की 1 रेडियंस की दी हुई है, और जो बैंडविड्थ है वो 0.1 रेडियंस में दी हुई है। मैंने यूनिट यानी लिखे, वो आप साथ लिख लीजिएगा, रेडियंस। ओके, या रेडियंस पर सेकंड।
फ्रीक्वेंसी रेडियंस पर सेकंड में होती है, आपके पास जो एंगल होता है वो रेडियंस में होता है। सो फ्रीक्वेंसी यहाँ तो आपके पास हर्ट्ज में होगी या रेडियंस पर सेकंड में होगी, ठीक है। अच्छा, अब ये जो पहली एक्सप्रेशन है h(s) = 1/s+1, इसमें हमने s की जगह पुट करना है s² + ω0² डिवाइड बाय b * s, और ω0 की वैल्यू मेरे पास 1 है और b की वैल्यू मेरे पास 0.1 है। मैंने एग्जैक्टली वही ट्रांसफॉर्मेशन की है सेकंड स्टेप पे, 1/s² + 1/0.1s+1, नीचे मैंने एलसीएम लेके फाइनल आंसर निकाला है h(s) = 0.1s डिवाइडेड बाय s² + 0.1s+1। आप सब लोगों का भी यही सोल्यूशन आया? यस सर। जी सर। ओके, यस सर। फिर हम एक छोटा सा लास्ट एक एग्जांपल कर लेते हैं, हमारे पास 10 मिनट हैं, जस्ट अ सेकंड। ओके, आप लोगों के पास ये लो पास फिल्टर के सेकंड ऑर्डर की एक्सप्रेशन सामने मौजूद है, ये क्या है? s² + 2√s+1। हाँ ठीक है, बिल्कुल। इसको क्या आप बैंड पास फिल्टर में कन्वर्ट कर सकते हैं फॉर ω0 = 1 एंड b = 0.1? यस यस सर। सर। कर दें फिर, ये तो आप तो इंटेलिजेंट लोग लगते हैं मुझे कोई। किसको सर दोबारा बोलना? ऑर्डर 2 को बटरवर्थ लो पास फिल्टर विद ऑर्डर 2 इसको आपने ट्रांसफर करना। ओके, यस सर। सर कंडीशन नहीं दी आपने, वो ω0 वाली और b वाली। ω0 1 है, b = 0.1 है। सर स्लाइड 8 खोलिएगा। ये लें। 1 मिनट, इसमें से देख। एक्सक्यूज मी सर। जी बेटा। सर 0.1। बेटा मैं इसको ये सॉल्व नहीं कर रहा, ये आप लोग खुद अपने पास यूनानिमसली सॉल्व करेंगे, मेरे पास इसका सोल्यूशन नहीं है इस वक्त। ओके, तो आप एक काम करें, आप इसको सॉल्व करके सोल्यूशन अपने पास रखें, नेक्स्ट टाइम आप मुझे क्लास में बता दीजिएगा, तो फिर जो सबका कंबाइंड सोल्यूशन होगा वही सही सोल्यूशन होगा, ठीक है? यस सर। ओके, ओके सर। किसी के पास कोई क्वेश्चन तो नहीं है आज के लेक्चर को लेके? सर जी सर एक बार वो पॉलिनोमियल्स वाली स्लाइड खोलिएगा, वो उस पर ये सारे नहीं, आ गई? यस सर। बंद कर दूं कि अभी खुली रहने दूं? ठीक है सर, हो गया। ओके, चलें अगर आज एक्सक्यूज मी के सर। जी जी पूछें। सर ये आपने जो बैंडविड्थ वाला बताया था, ये दोबारा एक दफ़ा बता दें कि अगर आपके पास ω0 30 होगा तो आप बैंडविड्थ भी हम खुद सेलेक्ट करते हैं ना कि हमने कितना हाँ, कितना रखना है? बैंडविड्थ भी आप खुद सेलेक्ट करते हैं, बिल्कुल। आपके पास मिड बैंड तो फ्रीक्वेंसी 30 रेडियन है। ओके, अब आप कितनी जी फ्रीक्वेंसी को सर। टर्न भेजना चाहती हैं? 30 से आगे और कितने भेजना चाहती हैं 30 से पीछे? आप बताएं। सर 20। 20 आगे 20 पीछे? जी सर। चलें, इसका मतलब है कि आप 10 से 50 तक की इंफॉर्मेशन सेंड करना चाहती हैं आगे, ऐसा ही है?
यस सर। तो इसके बीच में है 30, तो इस केस में आपका ओमेगा नॉट है 30 और आपकी बैंडविड्थ जी। कितनी हुई? बैंडविड्थ 30 40, 50 और 10 का फर्क ही लेना ना आपने। 50 और 10 का सर आए मुझे क्या नहीं आपको समझ कैसे कितनी इन्फॉर्मेशन अभी आपने खुद नहीं किया डिसाइड ये? यस सर खुद किया है। तो फिर अच्छा समझ आ गई है, ठीक है। तो 50 टोटल ठीक है, जितनी 50 वो में से 10 का फ्रीक्वेंसी निकाला। कॉन्टेस्ट वो 40 बच गया, ठीक है। तो ओमेगा नॉट सेंटर फ्रीक्वेंसी बता रहा होता आपको, और बैंडविड्थ आपको ये बता रही होती है कि कितनी इन्फॉर्मेशन आप भेज रहे हैं। वो ज्यादा भी हो सकती है, वो कम भी हो सकती है, ठीक है। ठीक है जी सर, ठीक है। और किसी के पास कोई हो क्वेश्चन? सर अगर आगे भी 15 और पीछे 15 होती तब? आप बताएं फिर कितनी होती बैंडविड्थ? जी जी सितारा मोहतरमा बताएं हैं। ये 30 ओमेगा नॉट है, मिड बैंड है। आप आगे भी 15 भेजना चाह रही हैं, Yes, पीछे भी 15। आगे 15 का मतलब है 45 और पीछे 15 का 15 मतलब है होगी। 15। हाँ, तो सितारा मोहतरमा क्या होगी बैंडविड्थ इस केस में? तो 15 ही होगी फिर। क्यों बेटा, आपकी मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी कितनी है मुझे ये बताएं? सर 30 तो हम सेंटर फ्रीक्वेंसी वो 15 आगे भेज रही है, 15 पीछे भेज रही है। तो 30 में 15 ऐड करें 45 और 30 में से जी 15 निकालें 15। ओके, 15 और 45 का फर्क कितना है? सर 15 और 30 45 30। हाँ, तो बैंडविड्थ केस में आपकी ओमेगा नॉट भी 30 होती है और आपकी बैंडविड्थ भी 30 होती है। नहीं समझ आई अभी भी? सर 30 में 15 को प्लस क्यों किया है? आप खुद ही तो कहा है कि 15 आगे भेजनी है, 15 पीछे भेजनी है, कुछ और जी कर लें। नहीं खुद नहीं, ही सही आपकी सही पास सही फरमाइश नहीं थी ये। जी जी सर समझ आ गया, आ गया। किसी और के पास कोई सवाल हो? अगर नहीं है तो फिर मैं नो आपकी सर। अटेंडेंस डाउनलोड कर लूँ आज के लिए। ठीक है, चलें गाइस, थैंक यू सो मच। अब हम मिलेंगे दोबारा मंडे को, ओके। और मंडे को हमारी क्लास होती है मैडम 1 से 3, राइट? यस सर। ओके गाइस, देन सी यू ऑन मंडे। बाय बाय। अल्लाह हाफिज सर। अल्लाह हाफिज़।